14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान और अब ये शर्मनाक हमला भारत की जानिब से किया गया है। That's why we say don't worry. You are so fond of Pakistan firing at you. पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल इस्तेमाल करके PF वर्सेस IF 6-0। साउथ एशिया एक ऐसा रीजन जहां पीस और टेंशन दोनों साथ साथ चलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया, दो न्यूक्लियर पावर्स, दो राइवल नैरेटिव्स और एक शेयर्ड हिस्ट्री जो कि हर दफा एक नई कन्फ्रंटेशन का सबब बनती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ 2.0। क्या हम एक नई कन्फ्रंटेशन के एज पर खड़े हैं? क्या डेटरेंस, जिसका कॉन्सेप्ट हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, आज भी इफेक्टिव है? हम आज देखेंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ दोबारा होता है तो एक्चुअली में होगा क्या। हम अगर हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कभी भी लीनियर नहीं रहे। 1947 से लेके आज तक हर डिकेड ने एक अपना क्राइसिस पैटर्न डेवलप किया है। अगर हम 1965 और 71 की कन्वेंशनल वॉर्स को देखें तो उन्होंने दोनों कंट्रीज के लिए डिफेंस डॉक्ट्राइन्स को रीडिफाइन किया। अगर हम 1999 का कारगिल कन्फ्लिक्ट देखें तो उसमें हमने देखा कि न्यूक्लियर शेडो के अंडर भी लिमिटेड वॉर हो सकती है। और फिर 2019 का बालाकोट इंसिडेंट, जहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटी और अपने प्रोफेशनलिज्म दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि आज दोनों कंट्रीज एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर और साइबर डोमेन में इंटर हो चुकी हैं। तो क्या कोई छोटी सी मिसकैलकुलेशन भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में डेवलप हो सकती है? लेकिन क्या स्टैंड ऑफ 2.0 इस डेटरेंस को टेस्ट करेगा? आज हम इसी सिनेरियो को ब्रेक डाउन करेंगे। एयर एस्केलेशन इन केस ऑफ स्टैंड ऑफ के एनालिसिस के लिए हम बात करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड अशफाक हराई से, जो कि एक्स डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिन भी हैं। To look at any future India-Pakistan air battle, we must understand that no two conflicts are fought in the same manner. India must have learned lessons from its previous conflict, and they must have made changes in their strategy and tactics as well as made some new acquisitions. Therefore, it's important for the Pakistan Air Force to understand that next time the Indians may not bring their aircraft within the range of Pakistan Air Force's air-to-air missile systems. They may employ long-range air-to-surface weapons against targets in Pakistan, staying outside the range of PF's fighters. For this, PF would need to focus on dispersion, camouflage, concealment, use of thermal defenses and EW as well as cyber capabilities to ward off the effects of these missiles. Additionally, PF must also look for opportunities to engage Indian aircraft which come within their range, as well as they must have made plans to engage Indian targets as a response using long-range standoff weapons. Therefore, we may not see the same results as were in the previous one, because this conflict is going to be a different one. So we have to reduce our losses on ground and inflict more losses on the enemy on their ground system targets. और in case of ground escalation या land escalation हम बात करेंगे एम्बेसडर डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद से। Assalamu alaikum. I am Major General Raza Muhammad, retired ambassador as well as a PhD on CPEC. I would like to say that Pakistan's military strategy is defensive, offensive by its character. It predicates on deterrence. It essentially means that Pakistan does not seek a war, but if war is imposed, to fight it tenaciously and end it on a favorable note. In essence, the war fighting would be to degrade enemy's offensive, contain it and launch strike forces with lightning speed at sensitive spaces deep into enemy's rear to affect a paralysis in enemy's decision making. Same was done in May 25. The India was utterly surprised at devastating counter-air offensive. Its high command was literally paralyzed. India grounded its air force for 2 days, which normally never happens in a war. Pakistan Army's ground offensive, along with
the line of control, and the missile attacks incapacitated them, inducing capitulation. In a few hours, they ran to United States of America for help to stop our response. Therefore, may it be any time or day, any force or any strategy, people and armed forces of Pakistan are ready to surprise them with unprecedented and lethal response without remorse or restraint. So my advice to India would be, better don't test us again. We will not fight the old war, but a brand new one that will be beyond expectations and comprehensions, far deeper, wider, and more lethal indeed. हम अगर इस हाइपोथेटिकल कन्फ्लिक्ट की आउटकम्स को एनालाइज करें तो सबसे पहले ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न वॉरफेयर में विक्ट्री का मतलब सिर्फ ज़मीन जीतना नहीं होता, बल्कि अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, वो भी विदाउट क्रॉसिंग द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। हाइपोथेटिकली अगर इंडिया लिमिटेड एग्रेशन करता है तो पाकिस्तान का इमीडिएट टैक्टिकल रिस्पॉन्स उस कन्फ्रंटेशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिकल आउटकम की तो डोमेस्टिकली पाकिस्तान में यूनिटी और सिविल मिलिट्री कोहेजन देखने को नजर आएगी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्रेशन और पॉलिटिकल पोलराइजेशन ज़्यादा नजर आएगी। अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक आउटकम्स की तो इंटरनेशनली अमेरिका इस सारे क्राइसिस को कंटेन करेगा, जबकि हम बात करें चाइना की तो वो पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट करेगा। अगर हम बात करें रशिया की, जो कि अब कोऑपरेटिव रोल में नज़र आ रहा है बजाय न्यूट्रल रोल के, वो भी मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को इंडोर्स करेगा। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, स्पेशली सऊदी अरेबिया और टर्की, तो वो भी पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी में खड़े होंगे। तो अगर अब वॉर होती है तो वो सिर्फ बैटल फील्ड पे नहीं होगी बल्कि डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पे भी होगी। तो अगर हम इस सब को कंक्लूड करें तो एक चीज़ तो क्लियर नज़र आती है कि पाकिस्तान कोई एग्रेसिव स्टेट नहीं है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग और सेल्फ रिलायंट स्टेट है। आज पाकिस्तान ना सिर्फ एक मिलिट्री स्टेट है बल्कि न्यूक्लियर, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक स्टेट भी है। पाकिस्तान ना कि सिर्फ अपनी सोवरेनिटी को डिफेंड करता है बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी को भी प्रिजर्व करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्पेशली यूथ के लिए कि हमें अपनी सोच को सिर्फ कन्फ्लिक्ट तक लिमिट नहीं करना चाहिए बल्कि पीस को अपना अल्टीमेट गोल बनाना चाहिए, क्योंकि असली स्ट्रेंथ सिर्फ वेपन में नहीं बल्कि यूनिटी, नॉलेज और नेशनल रिजॉल्व में है। पीस आउट।